सर प्लीज। जी सर। सर इतने बड़े फूल का हाँ सर प्लीज। थैंक यू सर। मेरा तो वेलकम टू माय होम। आप सर 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 प्लीज सर प्लीज हाँ जी सर जी जी सर ये सर थैंक यू सर जी गुड मॉर्निंग सर वेलकम सर आई कैप्टन मनोहर हाँ वेलकम सर थैंक यू सर सर मैडम प्लीज ओके हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बहुत अभिनंदन एवं सत्कार है। अब वह पावन क्षण आ पहुंचा है जब हम सभी मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए वंदे मातरम अपने स्तर अपने स्थान पर खड़े होकर इस गौरवपूर्ण क्षण के सहभागी बने। आप सभी का बहुत आभार। ज्योति राजू केमिस्ट्री ज्योति राजू रवि मंडल
Education, Rita Medi. Doctor of Philosophy, Physical Education, Reena. Asif Ahmed. We have Kusum, Aditi, Vanshika, Rakesh Joshi, Sakshi Kolwal, Vivek Sharma, It's our honor to show our gratitude towards our guest of honor, Honorable Mr. Justice Shri Naguru. It's our honor to express It's our pleasure to express our gratitude to High Court of Punjab and Haryana. धन्यवाद। My warmest congratulations to each of them in a country that is working to close the gender gap in higher education and in a region where the conversation has not always been so easy. This number speaks for itself. These young women would contribute more to the cause than any number of speeches would ever do. The degrees conferred upon you today, my dear students, certify the knowledge you have acquired over the past several years. It is a genuine achievement and you should be proud of it. But on this momentous occasion, I wish to emphasize what your degree does not certify and no examination can measure. Namely, how your character and judgment hold up once the structure of
formal education is no longer around you. In my experience, this ultimately determines the trajectory of a life. Dear students, I have spent most of my career observing individuals who appear before the courts or serve within various institutions of this country. Like this university campus, they come from different states and starkly varying social backgrounds. I understand that while this is a central university that attracts students from across the country, and the worthy Vice Chancellor in his status report highlighted this fact that from various students there is a good amount of, from various states there are good amount of students studying in this university, in true sense giving the culture, status and stature of a central university. But at the same time I believe that most of you might be from Haryana only. That only makes what I am about to say more personal. There are graduates of the most celebrated institutions who have faltered under pressure, not because they lacked knowledge, but because they had never been tested by anything other than a school or college examination. And then there are professionals from institutions nobody has heard of, who rise with composure and seriousness, earning the confidence of every room they enter. So what is the distinguishable factor then? In my view, it has nothing to do with the talent one may display in the classroom, and almost everything to do with upbringing. Those who grew up observing their families, managed scarcity with dignity, who understood early on that the world does not rearrange itself for your convenience, and who entered professional life already knowing that hard work is not just a phase but a permanent state. All of them carried something that no curriculum can teach. They carried a seriousness that was not performative but genuine. Many of you sitting here carry exactly this formation. You grew up in homes where a university degree was not a given but a goal that the entire family organized itself around. Choose to serve within them. I can quote that instance of Ramayana, when Bharat was handed over the throne of Ayodhya by his father's own decree. He chose to place Lord Ram's Paduka, Khadam, on the seat of power and govern from Nandigram as a trustee, not as a sovereign. This distinction between holding authority for yourself and holding it on behalf of others is what your obligation towards the public means. When educated citizens forget it and treat governance as someone else's concern, the institutions protecting everyone's right are the first to suffer. I am not asking all of you to enter public life or public service, though I would welcome if many of you did. But wherever your careers take you, carry with you the awareness that our collective life depends on whether educated people choose to engage with the systems around them or they simply benefit from them. बहादुर लाल किस विषय के अंदर आप बातें करेंगे? एजुकेशन। आप जैसे दिव्यांग हैं, कितनी चुनौती आपके सामने आई? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं मेहनत करता रहा। जैसे जैसे टीचरों से गाइडेंस मिलती थी और टीचरों से गाइडेंस लेते थे, और स्पेशली जो मेरे गाइड है प्रोफेसर सारिका शर्मा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और मतलब जहाँ समझ नहीं आता था वो उनको पूछता था, मैं वो गाइड करते थे। और
हमारे बीसी सर भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड करते थे, जो भी कभी भी ज़रूरत पड़ती थी उनके पास में चला जाता था स्पेशली, तो वो मुझे पूरी सपोर्ट मिली इस यूनिवर्सिटी से। और मतलब मुझे कभी फील हुआ ही नहीं है कि मैं अलग जगह पे आया हूँ दूसरी जगह पे। और मैं मतलब विजुअल अम्पेयर हूँ, और मैंने कभी ये सोचता हूँ कि जो ब्लाइंडनेस है वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये कन्फर्म था, क्योंकि जो भी जिस गांव से, जिस फैमिली से मैं आया हूँ, वहाँ पे इस तरीके का वातावरण नहीं था कि मैं उस तरीके से आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि जो मेरे भाई बहन है वो भी इतना नहीं पढ़े है। और ये सब मतलब टीचरों की मतलब देन रही, और मुझे जैसे जैसे गाइडेंस मिलता रहा मैं उस तरीके से आगे बढ़ता रहा। मेरा नेट जीआरएफ क्वालिफाइड है, और मैं इस यूनिवर्सिटी का जो पहला स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर हूँ विजुअल अम्पेयर, जिसने मतलब पीएचडी की उपाधि जो है वो हासिल की है। सर तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे का कोशिश है मेरी पोस्ट डॉक्टरेट करना है, तो आगे देखो। और प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पोस्ट निकलती है, तो और आगे भी मतलब यही टीचिंग लाइन में ही जाने का प्लान है। और मेन मोटिव मेरा ये है कि जो मेरे जैसे जहाँ और नॉर्मल लोग जो है उनको गाइड कर सकूँ, मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर जम्मू का। तो यहाँ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों चुने? सर एक्चुअली जहाँ का स्पोर्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, हॉस्टल फैसिलिटी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मैं 2018 में पहली बार यहाँ पे आया था, क्योंकि मैंने एमए इन एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से की है। और जहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, वैसे मुझे सारिका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और जो भी यहाँ पे फैकल्टी है, वीसी सर वगैरह, इन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया। और मुझे वहाँ पे जहाँ पे बहुत सपोर्टिव माहौल लगा, तो मैंने यहाँ इसलिए चुना। और बाकी भी मैं यही, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी आपके माध्यम से, मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे आइए, जहाँ एडमिशन लीजिए, और जहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और टीचर जहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली एचओडी और जो भी टीचर है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। काफ़ी सालों तक मेहनत की, आज सीजीआई का था, आपको उपाधि मिली है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि काफ़ी देर के बाद, पहले मैंने एमए की थी जहाँ 18 से 20 और 21-22 वाले बैच में मेरा एडमिशन पीएचडी में हुआ था, और 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ। आज मुझे जो उपाधि मिली है सर। क्या कोई कार्यक्रम भी चलाया गया था आपके द्वारा? हाँ जी, हाँ सर, मूव कोर्स चलाया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, और मतलब बहुत अच्छा रहा था वो, अच्छा है। और आज भी चल रहा है। क्या उद्देश्य? मतलब यही है कि जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनको हेल्प मिल सके, हाँ उनको हेल्प मिल सके अच्छे से। और जहाँ पे जैसे कंप्यूटर फैसिलिटी वगैरह वो भी प्रोवाइड की गई थी हम लोगों को, मुझे। और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो बोलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम सुन के करते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारी मंजू फोगाट। किस विषय में आप? साइकोलॉजी सर। किस प्रकार से क्या महसूस करें जो सीजीआई ने आपको आज उपाधि प्रदान की? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, वो सारी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। कितना जो समय तक आपने यहाँ पर सर मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। जो मेरा रिसर्च एरिया था वो सुसाइड प्रिवेंशन है। मेरा टाइटल था साइकोडायनामिक्स ऑफ सुसाइड, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सुसाइड। आगे का क्या लक्ष्य है? सर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में। सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय ने लगभग प्रत्येक एकेडमिक स्तर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस मंच से सम्मानित किया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम को बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए भव्य और गौरवशाली है। आज 1462 विद्यार्थी अपनी परीक्षा पास कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस उपलब्धि के लिए मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और उनके माता पिता को बधाई देता हूँ। आज 50 विद्यार्थी को स्वर्ण पदक और 66 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी सफल विद्यार्थियों की शुभकामनाएं एवं बधाई। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज जिन 50 विद्यार्थियों के इस मंच के माध्यम से स्वर्ण पदक मिलने जा रहा है, वे सभी अपने विषय में, संकाय में प्रथम रहे हैं। मेडल पाने वालों में 30 छात्राएं व 20 छात्र हैं।
हमारे विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थी संख्या लगभग 50% से अधिक छात्राएं हैं। वे आज डिग्री प्राप्त करने वालों में भी लगभग इतनी ही संख्या में छात्राओं की ही हैं। मैं सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी यह जानते हैं कि 21वीं सदी में हम विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित देशों की श्रेणी में जाने का रास्ता हमारे कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की ओर से ही होकर गुजरता है। मैं समझता हूं कि आप सभी ने अपने लिए कुछ ना कुछ सपने जरूर देखे होंगे। इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों की शुभकामनाएं आपके साथ है।